گاڑی میں بیٹھ کر میں نے دوسری سائیڈ کا دروازہ اس کے لیے کھولنا چاہا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہے۔ میری آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ ہنس پڑی۔ کچھ سے میں تم اس کے عادی ہو جاؤ گے۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، وہ وار فنگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہر وقت اس کی آنکھوں میں میرے لیے پیار کا دریا موجزن نظر آتا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں تم کتنے سندر ہو۔ اس خمار آلود نظریں مجھ پر ٹکی تھیں۔ ایسے ہی مجھے بناتی رہتی ہو، میں نے کہا۔ اپنے اپنے وچار کی بات ہے، وہ مسکرائی۔ خوبصورت ہو تو اور بات ہے، جبکہ خود کو تو میں روز آئینے اگر تمہارے بارے میں ایسا کہوں کہ تم کتنی میں دیکھتا ہوں۔ میرے نینوں میں خود کو دیکھو تو جان پڑے تم کیا ہو۔ حسین آنکھیں خمار آلود ہو گئیں۔ تعریف سننا انسان کی کمزوری ہے، اور یہی کمزوری اسے تباہی کے دہانے پر لے آتی ہے۔ ہم اسی طرح باتیں کرتے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں میری گاڑی خراب کی گئی تھی۔ یہ جگہ بھی مجھے اس لیے یاد رہ گئی تھی کہ جب مدد کی تلاش میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا تو میری نظر ایک خستہ حال ٹوٹے ہوئے بورڈ پر پڑی تھی جو کسی فلور مل کا تھا۔ نام تو شاید مٹ چکا تھا، ہاں فلور ملز کے الفاظ صاف پڑھے جا سکتے تھے۔ میں نے گاڑی اسی جگہ روک کر بائیں جانب دیکھا تو وہاں دور دور تک کھیت تھے۔ جس گاؤں میں مجھے دھوکے سے لے جایا گیا تھا اس کا وجود ہی نہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر ارد گرد دیکھا، بالکل وہی جگہ تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رادھا نے مجھے دائیں بائیں دیکھتے پا کر پوچھا۔ وہاں سامنے ایک گاؤں تھا جہاں مجھے لے جایا گیا تھا، میں نے اسے اشارے سے بتایا۔ لیکن اب تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہوں۔ یہ بات ہے، رادھا نے پر خیال انداز میں کہا۔ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ کیا بات ہے؟ واپس چلو موہن، رادھا نے جواب دینے کے بجائے کہا۔ ہم واپس چل پڑے۔ رادھا، میں تم سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ واپسی پر میں نے کہا۔ کیا؟ اس کی سوالیہ نظریں مجھ پر مکی تھیں۔ تم اتنے دن کہاں غائب رہیں، جبکہ تم نے کہا تھا تمہارا جاپ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ حصار جو میرے گرد قائم تھا وہ کیسے ختم ہوا؟ تم نے کہا تھا جب ہمارا جسمانی ملاپ ممکن ہوگا تب تم اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر دیے۔ اتنے سارے پرشن، وہ ہنس پڑی۔ میرے ذہن میں الجھن رہتی ہے، جب تک ان سوالوں کے جواب نہ مل جائیں گے میں بے چین رہوں گا۔ میں نے وضاحت کی۔ ٹھیک ہے موہن، ایک دن اور رک جاؤ، پھر میں سب بتا دوں گی، پر نہ تو تمہیں اپنا وچن یاد ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ کون سا وعدے؟ یہی کہ اس ساری جانکاری کے بعد بھی تم مجھ سے پریم کرتے رہو گے۔ اسے نہ جانے کیا خدشہ تھا۔ ہاں یاد ہے۔ تم فکر نہ کرو، ایسی کوئی بات نہ ہوگی، میں نے اسے اطمینان دلایا۔ اتنا یاد رکھنا موہن، تمری یہ داسی تمرے بن کچھ نہیں۔ یدی تم نے میرے من سے کھلواڑ کیا تو پھر۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو میں اصرار نہیں کرتا، میں نے ناراضگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں موہن، جانے میرا من کیوں بیاکل رہتا ہے۔ حسن افسردہ ہو گیا۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ تم اس دن میری مدد کرنے کیوں نہیں پہنچی تھی؟ جب کوئی منڈل میں بیٹھ جاتا ہے پھر اس سے تک باہر نہیں آ سکتا جب تک وہ جس کارن منڈل میں بیٹھا ہے اسے پور نہ کر لے، اس نے بتایا۔ لیکن تم تو صرف 2 دن کے جاپ کے لیے بیٹھی تھی، میں نے پوچھا۔ ہاں وچار تو میرا بھی یہی تھا، کیول 2 دن لگیں گے اس جاپ میں، پونتو سے کچھ زیادہ ہی لگ گیا۔ اسی کارن وہ دیشت تمہیں کشٹ دینے میں سپیل ہو گیا تھا۔ اسے پھر کالی داس پر غصہ آ گیا۔ ہم اسکول کی عمارت کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اچھا موہن کل ملیں گے، اس نے میری طرف دیکھا۔ کیوں آج رات نہیں آؤ گی؟ نہ جانے کیسے نکل گیا میرے منہ سے۔ من تو بہت کرتا ہے پر نہ تو آج نہیں۔ اس کے چہرے سے الجھن ظاہر ہو رہی تھی۔ یکدم میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں بچوں کو لے کر گھر آ گیا۔ کھانے کھا کر جب میں بینک جانے لگا تو سائمہ نے پھر شرجیل اور نائمہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ آج پھر مما کا فون آیا تھا، اس نے کہا۔ اوہو میں تو بھول ہی گیا تھا، میں نے تعصب سے کہا۔ آنٹی بھی کیا سوچتی ہوں گی، ایک کام کہہ دیا وہ بھی ان سے نہ ہو سکا۔ یہ بات نہیں، میں نے مما کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ آج کل بینک میں مصروفیت بہت ہے، ہم چند دن کے بعد آئیں گے۔
साइमा ने बताया, ठीक है कल चलेंगे। साइमा खुश हो गई। बैंक वापस पहुंचकर मैंने राधा को पुकारा। दूसरे लम्हे वो मेरी आंखों के सामने थी। किस कारण बिया कल है मेरा साजिन? इसके होंठों पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट थी। कल हम कराची जा रहे हैं शर्जील का मामला सुलझाने। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती हो? मैंने पूछा। क्यों नहीं प्रेम, मेरी बड़ी आशा है मैं तुम्हारी सेवा करूं, इसके लहजे में अपनाई थी। दो ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। याद है मैंने कहा था वो नारी तुम्हारे मित्र की चेली है। राधा ने मुझे याद। शुक्रिया, लेकिन ये सब कुछ कैसे मुमकिन होगा? मैंने कहा। दिलाया। कहा तो था लेकिन इस दिन बात अधूरी रह गई थी। तुम मेरे किसी दोस्त की बात कर रही हो? मैंने वजाहत चाही। वो कल्टा कालीदास की चेली है। राधा ने इंकिशाफ किया। क्या? लेकिन वो कालीदास को कैसे जानती है? मुझे हैरत हुई। मोहन हो नाज, उदयक सुंदर है, तुम देखोगे तो देखते रह जाओगे। इसकी एक सुखी कालीदास की चेली है, इसी ने इसका मिलन कालीदास से करवाया था। कालीदास सुंदर कनाहे को परसुन करता है। उसने थोड़े बहुत जंतर मंतर उसे भी सिखा दिए हैं, जिनके कारण वो जिसे चाहे अपने बस में कर लेती है। नाइमा का पति भी इसका शिकार है, पर न तो इस बार वो अपने चरित्र में सपियल ना हो पाएगी। राधा ने तफसील बताई। फिर तो बड़ा मजा आएगा जब वो नाकाम होगी। तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। मैं तो हर पल तुम्हारे संग होती हूँ मेरे मैयत, उसने बड़ी लगावट से कहा। देखना कहीं इस बार भी तुम्हें कोई काम ना याद आ जाए और मैं गरीब नाकाम होकर शर्मिंदा हो जाऊं। मैंने इसे छेड़ा। अब ऐसा नहीं होगा मोहन। इससे भी मैं किसी का रन ना आई थी और दूजे में जान गई थी तमर वो मित्र पहुंच जाएगा। यदि ऐसा ना होता तो मैं मंडल तोड़कर भी तुम्हारे पास पहुंच जाती। इसने कहा। मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था, मैंने हंस कर कहा। इससे बातें करते हुए वक्त का पत्ता ही ना चलता था। घर आकर मैंने साइमा को बताया कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट है। मैं मम्मा को फोन करके बताती हूँ। वो खुश खुश बाहर निकल गई। जब बच्चों को मालूम हुआ वो नानों के घर जा रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यूं तो मेरी दास्तान अजीब और गरीब वाकयात से भरी पड़ी है। उन सब को बयान करने के लिए हजारों सफ़हात भी कम हैं, लेकिन इस वाकये का ताल्लुक चूंकि कालीदास के साथ है और कुछ ये दिलचस्प भी है, इसलिए मैं इसे बयान करना जरूरी समझता हूँ। दूसरे दिन 10 बजे के करीब हम कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ड्राइवर मौजूद था। आध घंटे की ड्राइवर के बाद हम साइमा के मैके में थे। आंटी हमें देखकर बहुत खुश हुई। साइमा ने बताया था कि नाइमा की हालत काफी खराब है। वो इस बात का दिल का रोग बना बैठी है। मैं तो फौरन नाइमा से मिलना चाहता था, लेकिन सास साहिबा ने नाश्ता तैयार करवा रखा था। पेट पूजा के बाद मैंने नाइमा के बारे में पूछा तो पता चला वो अपने कमरे में। मैं थोड़ी देर के लिए थी बाहर आ गया राधा के साथ इस मसले पर बात करना। राधा एक सुनसान सड़क पर आकर मैंने इसे पुकारा। मैं तुम्हारे पास ही हूं पर यतीम। इसकी मधुर आवाज मेरे कानों में आई। क्या इरादा है? मैंने पूछा। इस नारी सपना ने नाइमा पर कालीदास से कुछ जंतर मंतर करोकर उसकी हत्या का प्रबंध कर रखा है। यदि तुम कुछ से और ना आते तो हो सकता था नाइमा इस संसार में ना रहती। मैं बुरी तरह चौंक गया। और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने तेज लहजे में कहा। मोहन, मुझे इस बात की जानकारी अभी मिली है। उसने सफाई पेश की। अच्छा ठीक है, अब क्या किया जाए? तुम चिंता ना करो, देखो मैं क्या करती हूँ। हाँ, तुम्हें एक बात और बताती हूँ। तुम्हारी सासू माँ सास ने एक पीर भी घर में बिठा रखा है। आजकल वो इसके चरण धो धो कर पी रही है। इस देशक ने तुम्हारी सासू माँ को वचन दिया है वो थोड़े ही दिनों में सब ठीक कर लेगा। राधा ने मुझे एक दिलचस्प बात बताई। क्या वो कुछ इल्म जानता है? मुझे तजस्सुस हुआ। बस 2-4 जंतर मंतर किसी से सीख लिए हैं। इसी से लोगों की बुद्धि नष्ट, अक्ल खराब करता रहता है। बहुत पापी है। इसकी नजर तुम्हारी साली पर है। वो इसका बलात्कार करना चाहता है। राधा की बात सुनकर मेरे खून में उबाल आ गया। कहाँ है वो कमीना? मैंने गुस्से में पूछा। इसी घर में एक कोठा पकड़कर धूनी रमाई बैठा। ठीक है, जैसे तुम कहती हो मैं वैसे ही करूंगा, लेकिन मेरे पास ही रहना। मुझे उन कामों का बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। मैंने कहा। निश्चिंत रहूं, मैं हर पल तुम्हारे
संग रहूंगी जैस कहती जाऊं करते जाना फिर देखना मैं कैसा चमत्कार दिखाती हूं, राधा ने हंस कर कहा। अब इस काम में मेरी दिलचस्पी बढ़ गई थी। राधा, मैं साइमा को क्या बताऊंगा? अचानक ख्याल के तहत मैंने पूछा। कह देना तुमने अपने मित्र के पत्ता से कुछ न कुछ सीख लिया है। राधा ने मुझे मशवरा दिया। हाँ ये बेहतर है। मैं मुतमईन होकर घर में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम में साइमा अपनी माँ के साथ सर जोड़े बैठी थी। बच्चे खाना खाकर सो गए थे। नायमा इससे इस पीर के पास इसके कोठे में बैठी हुई है। राधा ने मेरे कान में सरगोशी की। नायमा कहाँ है? मैंने बैठे हुए साइमा से पूछा। वो नहा रही है आंटी ने बमुश्किल बहाना घड़ा। मैं इनके पास बैठ गया। आंटी, बैंक में मेरे एक मातहत हैं मोहम्मद शरीफ। उनके वालिद मोहतरम साहिब करामत बुजुर्ग थे। मुझ पर खास शफकत फरमाया करते। अपनी वफात से कुछ अरसा पहले उन्होंने कमाल मेहरबानी से मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। जो औरत शर्जील को रिझाए बैठी है मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, वो एक फाहिशा है। सपना नाम है इसका। इसने नाइमा पर काला जादू करवा रखा है। अगर इसका बाकायदा और फौरी इलाज न किया गया तो खुदा नखास्ता उसकी जान को खतरा है। आंटी के लिए तो मेरी बातें ताज्जुब खेज होना ही थीं, लेकिन साइमा भी हैरत से मुंह खोले मेरी बात सुन रही थी। मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त नाइमा इस झूठे पीर के कमरे में है। वो एक फराड शख्स है। सपना, मैं शर्जील को भी जादू के जोर से अपना गुलाम बना रखा है। फारूक, आपने तो मुझे कभी बताया ही नहीं कि आप इतना कुछ जानते हैं। साइमा की आवाज में शको भी था और खुशी भी। ठीक हो जाएगा, मैंने उन्हें तसल्ली जी इंशाअल्लाह। आंटी, अब फिक्र ना करें, अब मैं आ गया हूं। ना सब कुछ दी। अल्लाह तुम्हारी जबान मुबारक करे। न जाने मेरे घर की खुशियों को किसकी नजर खा गई। उन्होंने आंसू पोंछे। अब दुआ करें और देखें क्या होता है। मैं जरा इस डब्बे पीर की खबर ले लूं, मैंने उठते हुए कहा। फारूक, मैं भी आऊं? साइमा ने मुझ झुकते हुए पूछा। मैं अभी इनकार करने ही वाला था कि राधा ने मुझे साइमा को साथ ले जाने का मशवरा दिया। ठीक है आ जाओ, मैंने कहा। फिर आंटी से पूछा, जावेद साइमा का भाई कहाँ है? अपने कमरे में। वो बेचारा भी सख्त परेशान है। उन्होंने बताया। अलिफ से भी बिला लें, मैंने कहा। साइमा जल्दी से जाकर उसे बिललाई। जारी है।